Good morning, guys. Am I audible? Yes, sir. Good morning. Morning, sir. Let's start. पहले हम एक इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट सिक्योरिटी एनालिसिस से लिंक्ड करेंगे. We call that as immunization, and then we'll be going to swaps today. We're doing interest rate swaps today. There's an extract of small topics connected with derivatives, but independent. It's the next 2-3 topics will be our target sessions of 2 sessions for every topic, average. हम 3-4 चैप्टर्स हम ये से फिनिश करेंगे. दिस इज अ स्मॉल कॉन्सेप्ट. दिस इज not asked till date on any paper. Immunization. So let's understand what is immunization, and we'll be doing one problem on the same. ठीक है ना guys? Immune होना, you know very well what is the meaning of that. To what the basis of the word immune. What happens is understanding. Okay, in case of bankers and say in case of the pension fund companies, etc., just imagine this way: if they have a liability after say 7 years, and whatever sum they are receiving, possibly investing in terms of assets. अब होता क्या होता है ना कि we need to take care of two things. Number one is the duration of both has to be the same. The duration of both has to be the same. मतलब अगर मेरा liability 7 years के बाद accrue होगा, मुझे पे करना है, तो मैंने assets को जहां जहां पे invest किया है उसका duration भी 7 पे खड़ा हो जाना चाहिए. तो अगर वो ऐसा नहीं होगा, then I'll be stuck up to discharge my liability on time. So every now and again, whenever you have a liability, you need to understand that my assets has to pitch out at the same point of time. Then I'm immune to my duration part. अगर मेरा duration of asset is less than 7 or more than 7, so definitely I need to arrive at a point जहाँ पे मैं उसे equivalent कर सकूँ in terms of 7. ये मेरा first immunity माना जाएगा कि मेरा duration of my liability is equivalent to duration of my assets. Duration of my liability is equivalent to duration of my assets, and the same stuff happens to be with yield. कि मेरे yield के fluctuation के basis पे am I exposed to some losses or not? So second element to get immune is the risk associated with change in yield rates. तो जब आप immunization की बात करते हो, हम time period की और हमारे रिटर्न्स के चेंजेस में आने वाले फैक्टर दैट इज यील्ड की. जब यील्ड चेंज होता है हमें पता है इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन प्राइस. whenever when the interest it will have an impact on the revised interest rates when the value is reinvested. तो यील्ड का दो फंडास आएगा, एक रीइन्वेस्टमेंट का रेट चेंज हो सकता है, दूसरा प्राइसिंग फैक्टर चेंज हो सकता है. तो इम्यूनाइजेशन में प्रॉब्लम क्या है? तो इम्यूनाइजेशन का थंब रूल ये है कि देयर इज अ नीड to adjust the values of liability with values of assets, and that too at the same point of time. तो जिस टाइम पे liability आएगी, क्या उस टाइम पे मेरे पास एसेट अवेलेबल है? अगर वो है तो मैंने इम्यूनाइजेशन कर दिया है, अगर नहीं है तो मुझे वैसा करना पड़ेगा. दैट इज ड्यूरेशन टर्म इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन. एंड द सेकंड इम्यूनाइजेशन व्हिच वी आर एक्सपेक्टिंग इज कि मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कहो, that is your asset, and your present value of
कैश आउटफ्लो, पॉसिबली योर लायबिलिटी इन यहाँ पे टर्म्स में लायबिलिटी एसेट है, जनरली हम कैपिटल बजटिंग में पीवीसी या पीवीसी देखते हैं। तो दोनों का प्रेजेंट वैल्यू सेम होना मतलब दोनों का यील्ड सेम होना। यील्ड सेम होने से क्या होगा, फाइनली जब आप कभी भी यील्ड चेंज भी होगा तो उसका जो री इन्वेस्टमेंट होगा वो रिवाइज रेट से होगा, इन बोथ द केसेस, एसेट्स के लिए भी और लायबिलिटी के भी। जैसे कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 9 है, यहाँ पे कुछ और है, लेकिन दोनों का यील्ड हमने जो एक्सपेक्ट किया है वो सेम है। अगर ये 3 इयर्स के बाद ये एसेट जो है वी हैव रिडीम हो रहा है और वापस हमें री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो री इन्वेस्टमेंट रेट समझो कि 11 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपका री इन्वेस्टमेंट होगा तब का जो आपका यील्ड रेट है यहाँ पे, अगर ये एक्चुअल रेट है 3 इयर्स के बाद का, तो डेफिनेटली लायबिलिटी बेसिस पे भी आप ये समझ लोगे कि 3 इयर्स के बाद का जो मेरा टाइम पीरियड में पेमेंट आएगा उसका भी यील्ड रेट 11 के हिसाब से पे करना पड़ सकता है। मतलब इन बोथ द केसेस whenever you are investing it will be applicable to both मतलब लायबिलिटी का भी पार्ट चेंज हो जाएगा और एसेट का पार्ट भी चेंज होगा। एक स्टार्टिंग पार्ट पे आपके वर्ड पे I'll make you write the introduction and this is best understood with a एक प्रॉब्लम ऑफ इम्यूनाइजेशन। मैंने कहा ये चीज अभी तक एग्जाम में कवर नहीं की गई है, लिखो वहां पे। एक मिनट, कैन यू सी द वर्ड स्क्रीन? Yes. ठीक है, it's a half a page theory. It means production of bond portfolio which needs to be immune changes in market interest rate, that is YIELD, yield. Immunization ensures that money available is equal to payment of liabilities arising in the future। मतलब हम इंश्योर कर रहे हैं कि आपका जितना लायबिलिटी पेमेंट हो उतना हो, so that I am not exposed to any risk anymore। हमारी भाषा में फॉरेक्स इसको हम हेज कह सकते हैं। इट इज अ स्ट्रेटजी which helps to bridge the mismatch
It is widely used by bankers, insurance companies, the two conditions, अभी हम थोड़ा practical जाएंगे, the two conditions या present value of PV of liability is equal to PV of asset, duration of liability is equal to duration of asset. ये दो चीजें is what we want to target to do immunization. अब जब भी you are doing immunization to it, you are just trying to ensure it कि we are covering for the future liabilities to be paid for against our assets. Because जैसे LIC है, bankers है, you have to be ready with that. And duration of liability is equal to duration of asset. यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि time period जो है वो हमारा साथ में मैच होना चाहिए. एक एग्जांपल लेते हैं. एक सेकेंड. लिखो. Example. A firm has a liability of rupees 1 million on 7 years. तो 7 years के बाद अब फर्म को 1 million पे करना है, that is 10 lakh rupees. The treasury manager wants to immunize his obligation by investing I'm sorry, by investing in 8% zero coupon bond and
5 ईयर 10%, ये कूपन नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी कूपन बॉन्ड बराबर 5 ईयर 10% कूपन बॉन्ड। अब ये क्या कर रहा है कि लायबिलिटी 1 मिलियन की है, उसको इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास दो बेसिस बनाए हैं, एक इन्वेस्टिंग इन 10 ईयर 8% जीरो कूपन बॉन्ड एंड 5 ईयर कूपन बॉन्ड। What shall be the value of investment if he expects yield of 8% per annum। अब शांति से इस सम को देखना, क्योंकि हमारे पास we are not going to do 5-6 sums of the same, it's like one only। ठीक है, now I am repeating this stuff again। If I talk about the liability part, यहाँ पे you have a liability of 10 lakh payable at the end of 7 years। नंबर 2, एसेट्स की जो उन्होंने बात की है, that is 10 years 8% जीरो कूपन बॉन्ड, और सेकेंड एसेट जो आपके पास यहाँ पे है, that is 5 years 10% कूपन बॉन्ड। एक छोटा सा कॉमन सेंस लॉजिक, पेमेंट आपको 7 इयर्स के बाद करना है, और यहाँ पे आपके पास 5 इयर्स के बाद जीरो कूपन बॉन्ड रिडीम होंगे, और यहाँ पे जीरो कूपन बॉन्ड 10 इयर्स के बाद रिडीम होंगे। कैन समवन थिंक ऑन दिस? आपके जो 5 इयर्स के कूपन बॉन्ड है वो डेफिनेटली अगले 2 साल तक री इन्वेस्ट होंगे। डू यू अग्री? आपके जो 5 इयर्स के जीरो कूपन बॉन्ड है, 7 इयर्स के बाद पे करना हो, तो 5 इयर्स के कूपन बॉन्ड कब रिडीम 5 इयर्स के बाद होंगे, वापस कितने साल के लिए इन्वेस्ट होंगे? 2 years। 2 इयर्स, राइट? Yes। एंड योर 10 ईयर जीरो कूपन बॉन्ड जो है उसका जनरली हमें करंट मार्केट प्राइस ढूंढना हो प्रथम, तो कैन आई से द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू For zero coupon bond? जीरो कूपन में? Yes। वैसे ही कैन आई से दैट आई कैन हैव इट्स मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ 7th ईयर आल्सो, दैट विल बी प्रेजेंट वैल्यू एट द एंड ऑफ 7th ईयर फॉर अ फेस वैल्यू, Yes। and that will be the possible price at which I can sell it in the market. Yes। So let me redeem it. Are you getting my point here? Yes। So what this has actually, ये practically कैसे होगा, तो ये सिर्फ इतना ही करना है कि आपके पास जो पैसे जल्दी रिडीम होंगे उसे रीइन्वेस्ट होंगे उस यील्ड पे, और आपके पास जो मैच्योरिटी टर्म 10 इयर्स का है वो कंपनी का मैच्योरिटी टर्म 10 इयर्स का है, बट डेफिनेटली इट हैज अ लिक्विडेटेड वैल्यू एवरी ईयर टू दैट। तो यहाँ पे उसको हम मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में तो बेच पाएंगे, इफ नॉट विद द कंपनी, मतलब नॉट इफ नॉट रिडीमिंग विद द कंपनी एज सच।
तो यहाँ पे तो ये 5 years क्या है, कंपनी का पर्सपेक्ट है, उसके बाद हमें कवर करना है। तो लिखो यहाँ पे आगे, द लायबिलिटी of rupees 10 lakh at the end of 7 years will be immunized by investing in the two assets as discussed above. There is zero coupon bond and your coupon bond. Number one, computing. देखो ये थियोरी था ना अपना, ये दो थियोरी था ना, पीवी ऑफ लायबिलिटी, पीवी ऑफ एसेट ढूंढना, ड्यूरेशन ढूंढना। तो कंप्यूटिंग पीवी and duration of liability. Now, in this case, आपके पास PV of 10 lakh at 8% discounting factor कितना आएगा बोलो तो? एट परसेंट एंड 7 years कितना आएगा? बोलो फटाफट। ₹5,83,490. Yes. If I take with 3 decimals का prospect 583, right? 583, 500 round off to जैसे ये आपका पीवी है 10 लाख। टेल मी व्हाट शैल बी द ड्यूरेशन इन दिस केस इफ यू आर गोइंग टू पे डायरेक्टली आफ्टर 7 years? Seven. Very good. Duration of liability 7 years. It is like a zero coupon in this case since payment to be discharged at the end. तो आपको दो चीजें मिली है, एक है आपका ड्यूरेशन, दूसरा है आपके पीवी ऑफ लायबिलिटी। नाउ आई वांट टू फाइंड आउट पीवी ऑफ एसेट्स। सेकेंड पार्ट मैं ऐसा लिखूंगा पहले, सॉरी, कंप्यूटिंग पीवी and duration of assets. Computing PV and duration of assets. अब if you just see the question here, हमें तो ये देखना है कि हम कितना इन्वेस्ट करेंगे जीरो कूपन बॉन्ड के अंदर। तो ये 10 million इन्वेस्ट करना है वो बराबर है, लेकिन हमारे पास 10 million इन्वेस्ट करने के लिए कितना हमने जीरो कूपन में इन्वेस्ट किया है और कितना हमने कूपन में इन्वेस्ट किया, वो वैल्यू पता है कि नहीं है? नहीं मा We don't know. तो यहाँ पे computing PV directly is not possible. We need to use the equations to get that. But going about duration here first. The duration of zero coupon bond, so it's quite, we are quite familiar with it. Okay, how what will that be? If I write it here, 10 years, 8%,
ZCB. Since it is zero coupon bond, the duration is equal to the maturity, that is 10 years. तो मुझे इसका तो ड्यूरेशन मिल गया, that is 10 years, क्योंकि ये जीरो कूपन था. Element number 2, 5 years, 10% कूपन बॉन्ड. हम एक काम कर लेते हैं यहाँ पे, इसका FE कोई भी रैंडम वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं, जैसे assuming FE as rupees 1000. Can you assume anything? I am assuming it. Now हमें ड्यूरेशन ढूंढना है किसका, सेकेंड एलिमेंट का. इसके लिए आप फेमिलियर हो, ईयर, कैश फ्लो, आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर, पीवी, आपका वेट, एंड देन फाइनली वेट इनटू ईयर. आपके ईयर्स यहाँ पे कितने आएंगे, 1, 2, 3, 4. The same way what we do in duration, and 5. आपका कैश फ्लो यहाँ पे 100 मैंने 10% इंटरेस्ट रेट कूपन बॉन्ड है, ये 1000 पे 10% ब्याज लगेगा, तो ये 100 100 100 100 और यहाँ पे आएगा 1100. उसके बाद डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 8% हम लेते रहेंगे 0.909, 0.826. आप ये मैं क्यों लिख रहा हूँ कि आपको पता ही है, आप फटाफट मेरे साथ कॉपी करो पहले ये. We will take discounting at 8%, right? Yes. So you are writing 10% का discounting factor. चेक करो. Is it? I have done it at 10. Yeah. Sorry. 8. I'm so sorry. Discounting at 8. So why are we taking 8%? The yield is 8% in the question. Okay, yeah. Give me the numbers here. आप yield 8 से डिस्काउंट करो, discount with a yield of 8%, it will be 0.926. Excel use किया होता तो जल्दी होता. Just give me the values, guys, फटाफट. Point 857, 0.857, 0.794, 0.794, 0.735, 0.735, and 0.681. 0.681. ठीक है. Now आप पीवी खुद ढूंढ लो. Just give me the directly total answer of PV net यहाँ पे, या PV आप लिख, give me the total value of PV. मैं सब तो लिखनी तो पड़ेगी ही. प्रथम तुम लोग लिखो 926. So 1080. Yes. 1080. 794. 735. And your यहाँ पे कितना आएगा? It will be 749. 749. Total is 1080.
अब तुम लोग का काम चालू होता है वेट, पीवी अपॉन वेट, पीवी अपॉन वेट, पीवी अपॉन वेट कर लो ये पूरा वेट्स, और फिर वेट्स को ईयर से मल्टीप्लाई करके मुझे ड्यूरेशन का आंसर दो। Once you get the value of duration, tell me. So 4.2 years. Exactly. 4.20 years. सब लोग को ये आ जाए फिर आगे जाते हैं। Everyone, Wrinkle, have you got one 4.20? Yes, sir. Okay. Now, Sushti, Akshay, Tejas. Yeah, done, sir. Okay. Once you do Yes, it, just Yes, sir. ठीक है। जो लोग ने हो किया है ना, मैं वेट करूंगा, खाली तुम लोग ट्राई करो। In order to immune, ये इक्वेशन हम यूज करेंगे, ड्यूरेशन ऑफ लायबिलिटी इज इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ एसेट। तो यहाँ पे हमें यही करना है। तो यहाँ पे आपका ड्यूरेशन ऑफ लायबिलिटी 7 है, वो हमें पता है। उसके बाद हम वेट, we have two securities, wait for zero coupon bond into duration of zero coupon bond plus weight of coupon bond into duration of coupon bond। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ इलाज के लिए, जिनका हो चुका है वो ट्राई कर सकता है। वेट ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड इनटू ड्यूरेशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड प्लस वेट ऑफ कूपन बॉन्ड इनटू ड्यूरेशन ऑफ कूपन बॉन्ड इज इक्वल टू व्हाट वी वांट इट एज 7, बिकॉज वी वांट के वो 7 ही हो, क्योंकि हमारा लायबिलिटी का ड्यूरेशन 7 है। If you want to keep liability duration as 7, we have already kept duration of liability as 7, and we want to ensure it that our bond, which has bond portfolio has two bonds actually, one is coupon, one is zero coupon, उस दोनों का combined duration 7 होना चाहिए। What we are doing कि उसका individual duration हमारे पास होना चाहिए, इसका हमारे पास है, इसका हमने अभी कंप्यूट किया, और यहाँ पे ये वेट्स को हम क्या कर देंगे, x and 1 minus x कर देंगे, based on which you will be getting the weights to be invested in zero coupon and coupon। Are you getting my point here? Yes. तो आपको सिर्फ ये यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा क्या है, पूछा हमें ये कि भाई
तुम लोग बताओ कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, so that my durations of both assets is equivalent to liability, and duration of both assets in the portfolio of bond is nothing but duration of zero coupon and duration of coupon. जीरो कूपन का मुझे ऑलरेडी मिल चुका था S7 एंड यहाँ पे मैंने ढूंढा है 4.20. Akshay, are you finished with 4.20? Yeah, sir. Are you ready to do this? Yeah. You want me to explain? No, got it, sir. Get me the weights now. Get me the weights of ZCB and the weight of CB. So 48.27 and 51.72. Very good. मतलब इसको मैं क्या कर दूंगा पता 48.28 कर दूंगा 48.28 Yeah. and the coupon 51.72. 5172. अब वैल्यू तो तेरे पास ऑलरेडी है ही, that is 583,500, right? Yes. तो पीवी तो उसका तू 48.28 जीरो कूपन में डाल देगा और 51.72 कूपन में डाल देगा. लिख लेते हैं वो पार्ट पहले. लोग का एवरीवन जस्ट गेट दिस वेट्स फर्स्ट. 0.4 48 28.51 72. हमें 10 लाख इन्वेस्ट नहीं करना है, हमारी 10 लाख की 7 इयर्स के बाद की लायबिलिटी एसेट क्रिएट करना है. तो आज हमें जो इन्वेस्ट करना है वो 10 लाख नहीं, 10 लाख का पीवी है, वो आता है 583,500. और 583,500 को हमें इन्वेस्ट करना है इन 2 बॉन्ड्स. तो 2 बॉन्ड्स का वेट्स क्या है? तो 583,500 इनटू द रिस्पेक्टिव वेट्स ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड एंड रिस्पेक्टिव वेट ऑफ कूपन बॉन्ड. तो आपको क्या करना पड़ेगा? द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन ZCB एंड अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन CB विल बी 583,500 into 0.4828 and 583,500 into 0.5172. यस जोशी, समझ में आ रहा है? यस सर. तो आपका आंसर जो आएगा 281,714 आएगा. इन्वेस्टमेंट इन ZCB 0.4828 583. इसके बाद एक और वीडियो बनाया था. ये तो आपको मैंने सम सॉल्व किया. इफ यू वांट टू गेट री-वेरिफिकेशन वीडियो टू दिस इमेराइजेशन, ये एक्चुअली ये इमेराइजेशन हुआ कैसे, मतलब ये नंबर्स को हम रिकैलकुलेट करें री-वेरीफाई एक्सेल पे, तो आपको ये समझ में आता है कि फाइनली हाउ डज this valuation, that is investing 281,714 and investing 301,786 immune to it. It's just for knowledge purpose. तो मैं एक छोटा सा वीडियो YouTube पे डाल दूंगा, आपको लिंक दे दूंगा ग्रुप पे, कल आज शाम को दे दूंगा, वो वीडियो अपलोड कर दूंगा आफ्टर माय लेक्चर्स गेट हो. तो आप वो सिर्फ वीडियो देखना अगर आपको इंटरेस्ट है ये जानने के लिए कि ये जीरो कूपन और कूपन का जो हमने ये वैल्यू निकाला, ये वैल्यू से इम्यूनिटी जो क्रिएट हुई है उसका वर्किंग कैसे बनता है. This is your final answer 281,714. That is the question which was telling us how much should be invested in zero coupon bond to get immunity with respect to 7. आप लोग का हो जाए मुझे बोलो, फिर हम एक नई दुनिया में जा रहे हैं, डेरिवेटिव्स की दुनिया में, जहाँ पे हम जो सम्स ले रहे हैं अभी. We are trying to take it small chapters of derivatives first and then going to the forwards, futures and options. मैं 2 मिनट होल्ड कर रहा हूँ. 8:43:44 हुआ है, 2 मिनट फिनिश हो जाए फिर हम लोग स्वाप्स पे जाएंगे आज.
Guys, Sir, are you done with this? Hello, yes. sir, could you please explain this last part again after in order to immune? Okay. See, now I'll explain you again. Now the basis is to get immune. To get immune. Immune means what? Immune regarding two factors. One is duration and one is PV. So immunity regarding duration will arrive at whereby my duration of liability and my duration of asset is equivalent. That time I can say कि I'm immune to duration. Immune duration means what? कि जब मुझे पे करने को आएगा तो मेरे पास पैसा होना चाहिए उसी दिन पे. समझ में आ रहा है? Yes. तो मेरे को ये देखना है कि ड्यूरेशन ऑफ लायबिलिटी ड्यूरेशन और एसेट को सेम करूंगा तो मैं इम्यून होगा. अगर मैं सेम नहीं कर पाएगा तो मैं इम्यून नहीं होगा. तो हमने क्या किया, एक इक्वेशन बनाया कि काम करते तो फिर हमारा ड्यूरेशन ऑफ बोथ हैज टू बी द सेम. माय एवरेज ड्यूरेशन ऑफ एसेट हैज टू बी इक्विवेलेंट टू एवरेज ड्यूरेशन ऑफ लायबिलिटी. Yeah. So what we did first, let's identify what is the duration of liability, which was easier in this case because यहाँ पे liability was to be paid at the end of 7 years. So we arrived at 7 as the duration of liability. ठीक है? Now 7 is duration of liability since the payment is to be decided at the end. Now duration of assets, where you have two assets, right? So every asset will have its own duration. Do you agree? Yes. So now what we have to arrive for? We have to arrive for the weighted average duration of every asset in my portfolio. Do you agree? Yes. Weighted average duration of every asset in my portfolio. So I have how many assets in my portfolio in this question? Two assets, right? So what should be the formula? The duration of asset A into weight of asset A plus duration of asset B into weight of asset B. Do you agree? Yes, sir. Yeah. So यहाँ पे we wrote it, your weight of asset A, that is zero coupon bond, into duration of asset A, that is zero coupon bond, plus weight of asset B, that is coupon bond, into duration of asset B. The weight into the durations give us the weighted duration of the entire portfolio of bonds. And with this equation, since we had duration of both assets available with us of zero coupon and coupon, by using your X and 1 minus X strategy, we could arrive at the weights of zero coupon and coupon. And that was what when asked for in the question. Samjha? Yes, sir. Got it. Thank you. Give the fresh heading now. Fresh heading now. और हम लोग आज शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट. ट्रस्ट मी, अगले जो तीन चार चैप्टर्स आएंगे ना, वो सुपर लेवल चैप्टर्स होंगे. मतलब यू विल बी एंजॉयिंग इट in terms of concepts. You will be learning a lot new to the same concepts. Plus exam point of view के अंदर ये ऐसा चीजें होगा जो varieties बहुत ज्यादा है और content में हर एक variety में will have 4 5 sums to it. Small topics start and started. कोई बच्चा मिस करता है तो he should ensure it कि फिर वो पूरा सेशन मिस करे. 2 सेशन का ही चैप्टर है पूरा, तो वो कैरी कर पाएगा. और अगर अभी जैसे कल कोई बच्चा नहीं था, अगर आप कोई एब्सेंट रह रहे हो तो एटलीस्ट इतना काम कर लो, आपके कोई फ्रेंड को रिकॉर्ड करने की ऑप्शन दे दो, क्योंकि मेरे पास मेमोरी बहुत मतलब इट्स लाइक एन इशू व्हिच कंसिस्टेंटली गोज ऑन. फर्स्ट ऑप्शन इज आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड एवरी लेक्चर्स, एंड अगर आपको और फैसिलिटी चाहिए तो दैट बेस्ट इज कि अगर एक्स नहीं आया तो वाई को मैं एक्सेस दे दूंगा रिकॉर्डिंग का, वाई नहीं है तो जेड को दे दूंगा. इससे क्या होगा, आप इजीली फटाफट एक्सेस ले पाओ. लेट्स स्टार्ट. जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट. टुडे विल बी अभी नेक्स्ट 1 घंटे में हम लोग इंटरेस्ट रेट स्वैप्स के कॉन्सेप्ट को एग्जीक्यूट करने वाले हैं. एंड इन द नेक्स्ट सेशन हम उसके अराउंड 6-7 सम्स प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ इस टॉपिक का, सुनो ध्यान से.
ठीक है, मान लीजिए So are you starting this as a part of derivatives or is it a part of security valuation? securities is done. Only new addition which I did was immunization. So the chapter is over, right? Security valuation. The chapter was over last class only. मैंने वो valuation of rights जो प्रथम ऐड करवाया ना, वो सब हाँ. वो भी एडिशन था, बट उस सम्स को उसमें ऐड करके रखा था. So the rest of the sums that have not been done are homework, right? नहीं, दैट्स नॉट होमवर्क. वो रेस्ट ऑफ द सम्स जो है ना, वो तुम लोग पिक करना, खाली होमवर्क नहीं. मैं तुमको उसमें कुछ नहीं है, वो सब में 3 या 4 सम्स है मैक्सिमम. इफ जस्ट चेक द शीट, मैं तुम लोग को है ना उसके जैसे हमने वो सम्स दिए थे ना बेसिक्स वाले, आई जस्ट अपलोड इट. अगर Okay. आपसे सम ना हो तो आप देख लेना उसके अंदर Okay. to check the answers. That's it. I will not. That's not homeworks. वो खाली videos, जैसे वो लास्ट लिंक भेजी थी, ऐसे इस वीक में भेज दूंगा 2-4 सम्स के videos. वो सम्स आर समथिंग which you can avoid for also. Okay. उसमें एक दो सम ऐसे हैं जिसमें ना एक्सेल वर्किंग्स लगती है. अब पहले है ना इंस्टीट्यूट डायरेक्टली देता था मॉड्यूल के एग्जाम के अंदर वो वैल्यू. अब अनलेस यू हैव दैट मैथमेटिकल कैलकुलेटर्स टू इट साइंटिफिक, वो आपसे सॉल्व ही नहीं हो सकता. वो दैट्स द प्रॉब्लम इन अ फ्यू आउट ऑफ इट. ठीक है, बाकी सम्स के नंबर्स मुझसे कुछ मिस हो गए हो ना, तो आई रिक्वेस्ट यू कि जस्ट मुझे क्वेश्चन नंबर भेजना कि सर ये आपने नहीं किया, तो मैं डेफिनेटली इस वीक के अंदर एक एक क्वेश्चन नंबर डाल के एक एक वीडियो डाल दूंगा. जो आपसे ना हो वो वहां से देख लेना. देयर इज नो कॉन्सेप्ट्स टू दैट सम्स. कॉन्सेप्ट्स आर डन. रिपीटेटिव सम होगा. ठीक है, लेट्स स्टार्ट गाइस. आपको स्क्रीन Yes. दिख रहा है ना, व्हाइट बोर्ड? Yes. ठीक है, मतलब तू ही मुझे बता देना उस पे कौन सा पेंडिंग है. मुझे शायद तक कुछ मिस, मतलब आई वाज लाइक इट्स ऑलमोस्ट डन. 1-2 होगा, तू चेक करके मुझे एक बार मैसेज कर देना आज. ठीक है, Yes, sir. ओके. तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इंटरेस्ट, फ्लोटिंग एंड फिक्स्ड. फ्लोटिंग में यू आर गोइंग टू पे बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस which happens, मतलब जैसे फ्लेट्स चेंज होंगे आपका रेट भी चेंज होगा. और फिक्स के अंदर आपका रेट फिक्स हो जाएगा, फ्लोटिंग एप्लीकेबल नहीं होगा. तो irrespective of changes in rates, your rates is fixed. ठीक है. Now I ask you a question. In a market where interest rate goes down, which one you prefer, floating or fixed? Fixed. As a borrower, when the interest rates are going down, which one will you prefer? Floating. Floating. And as interest rates goes up, which one you prefer? Do you agree? Yes. ठीक है, I'm talking as a borrower. ठीक है, as a borrower. ठीक है. Now, expecting what shall happen to the interest rates, that's also a challenge, right? Okay, the interest will go up or down. Do you agree? Yes. Number 2, Yes, sir. the perception of the investor. If I ask, okay, Pratham, if you're not, we are trying to anticipate the interest rates, but you're not that sure to it. You're a businessman who wants some money. Now, which kind of a loan will you prefer, fixed or floating? So could you repeat the question? If you want to borrow some money for your business, you want some capital, Yeah. and you have both options available with you, floating and fixed, but you are not someone who is expert in the field of finance, whereby you understand the interest rate movements to be done in the next possible 2 years. Which kind of interest do you prefer, fixed or floating? Fixed. Fixed. It's an approach, right? It's an approach. कि बंदे ने बोला कि भाई मुझे फिक्स चाहिए, I can determine my outflow so that I'm easily identifying my cash flows to it, right? इनफ्लो क्या होगा और फ्लो क्या होगा. So every investor will have its own approach. Someone who likes, I'll go with the market because my returns are also moving with the market, so I'll go with the market, I'll go with floating. So it happens normally that the requirement in terms of fixed floating might fluctuate. Number 2, the anticipation from the market might also fluctuate. जैसे प्रथम ने कहा कि सर इंटरेस्ट रेट फिक्स इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा. ऐसा भी हो सकता है.
और साहिल ने कहा सर मुझे तो लग रहा है इंटरेस्ट रेट बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता, तो मुझे तो लग रहा है फ्लोटिंग लेना चाहिए. So can I say that can there be a difference of opinion regarding the same matter by different persons? यहाँ पे opposite हो रहा है. Do you agree? Can that happen? Yes or no? Yes. Yes. तो ऐसा हो सकता है. अब जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है तो अक्षय कहेगा कि सर मुझे तो लग रहा था ब्याज रेट कम होगा, तो मैं फ्लोटिंग ले लिया, और प्रथम को लगा इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो उसने फिक्स ले लिया. लेकिन दोनों सही तो नहीं हो सकते. दैट्स ट्रू. नंबर 2, ऐसा भी हो सकता है कि प्रथम ने जब बोरो किया पैसा, वो फिक्स्ड है, और अक्षय ने जो बोरो किया है वो फ्लोटिंग है. आगे जाकर प्रथम फील्स के आई वांट फ्लोटिंग, एंड आगे जाकर अक्षय फील्स दैट ही वांट्स फिक्स्ड. कैन दैट हैपन आल्सो? एवरीवन, डू यू एग्री? Yes. Yes. हमने आप I'll go with the scratch. This is a topic which very easy once you get the concept, and if you don't get the concept, it's like impossible to do this. Example number 2, पूरा ध्यान से. आप suppose for example आपकी उम्र 7-8 years 10 years थी. आप आपके फ्रेंड्स से आप कुछ खेल रहे हो, या basically playing with your friends in your society in your. अब प्रथम सपोज एक एंटिसिपेशन लो कि एक बच्चे ने एक एक्स कार खरीदी, क्या बोलते हैं वो, टॉय, अ ब्लैक कलर कार एज अ टॉय. एंड स्टूडेंट बी ने, मतलब उसके फ्रेंड ने एक व्हाइट कलर की कार खरीदी. अब कुछ समय बाद उसको ब्लैक नहीं पसंद है, कुछ समय का उसको व्हाइट पसंद नहीं है. ऐसा होता है या नहीं? एंड दे मे गो विद अ डील कि लेट्स एक्सचेंज इट फॉर सम टाइम बिंग. हैव यू थॉट अबाउट दिस? यस और नो? Yes, sir. इन दिस सेम एग्जाम्पल, अगर प्रथम या वो बच्चा जब वो नई कार बाहर लेने जाएगा व्हाइट, तो उसको महंगी पड़ेगी, और ये बच्चा जिसका व्हाइट है अगर वो नई ब्लैक लेने जाएगा तो उसे महंगी पड़ेगी. डू यू एग्री? Yes. लेकिन अगर वो लोग स्वैप कर लेंगे तो दोनों को बेनिफिट हो सकता है या ना? Yes. Yes. दिस इज द थंब रूल टू दिस टॉपिक. थंब रूल यही है कि तुम्हारे पास जो है, अगर एक बंदे के पास फिक्स्ड है, एक के पास फ्लोटिंग है, कुछ समय के बाद ये ए और ये बी, इसका जो वांट है, अगर उसे वो वांट्स को एक्सचेंज करना है, तो अगर वो डायरेक्टली उसके बैंकर के पास जाएगा कि ये मेरा फिक्स ले ले मुझसे और मुझे फ्लोटिंग दे, ये बोलेगा ये मेरा फ्लोटिंग ले ले और मुझे फिक्स दे, तो बैंकर तो दोनों से ज्यादा कमाने की कोशिश करेगा. और यही चीज अगर ये लोग क्या कर ले, इंटरचेंज कर ले, तो देयर आर चांसेस के 2 पैसे बचेंगे. अग्री? यस और नो? मतलब इसका फ्लोटिंग लोन इसको चाहिए था तो ये ब्लैंक से ना ले, इससे ले ले, और इसको फिक्स लोन चाहिए इसके एक्सचेंज में, तो फिक्स लोन वो बैंक से ना ले, इससे ले ले. तो वो Sir, समझ रहा है? sir, in this you'll also have to ensure that the principal amount is same, right? Yes, obviously, naturally. I'll come to that in 2 minutes. बीच में कौन है पता है? प्रथम स्वैप बैंक. कौन है? Swap bank. Use the term as you can say as intermediary or agent also to this swap bank. ठीक है? तो ऑफिशियली कोई बैंक नहीं. तो स्वैप बैंक का काम क्या है पता है? प्रथम to make this executable in terms of time period, in terms of value, that is principal value, and benefit in terms of के 2 पैसे बचने चाहिए ये सब करने में. Yes. यहाँ पे ध्यान देना. अब यहाँ पे मिस्टर ए है, सॉरी ये कंपनी ए है और कंपनी बी है. कंपनी ए और बी ने दोनों ने समझो कि उसके रिस्पेक्टिव बैंकर से 100 लाख रुपीस, दैट इज 100 लाख का लोन लिया था. अब ये 100 लाख का लोन ए ने जो लिया था वो फिक्स्ड पे था, और बी ने जो लिया था वो फ्लोटिंग पे था. तो ए का लोन फिक्स्ड है, बी का लोन फ्लोटिंग है, अपने रिस्पेक्टिव बैंक से लिए हुए पैसे हैं. ठीक है. अब इसका कोई समझो कि फिक्स का रेट 9% है, इसका फ्लोटिंग का रेट है मुंबई, अरे सेकंड ओके,
आई थिंक यू कैन सी द स्क्रीन। इसका रेट 9% है सपोज, तो इसका रेट जो यहाँ पे आ रहा है, इसने लिया था मिबोर +1, मतलब जो बेस रेट फ्लोटिंग रेट, इसको हम कहते हैं मुंबई इंटरबैंक बोरोइंग रेट एम मिबोर, और एक होता है लिबोर, दैट इज लंदन इंटरबैंक बोरोइंग रेट, हम आगे जाके लिखेंगे उससे। तो इसका फ्लोटिंग रेट क्या है, आपका रिस्पेक्टिव आरबीआई का मिबोर रेट उसका +1 इज फ्लोटिंग रेट, एवरी टाइम ये चेंज होगा मिबोर, इसका चेंज होगा। इसका क्या है, फिक्स 9%। अब ये लोग को खुद का एंटीसिपेशन मार्केट से जो था वो अलग हो गया, और ये चला गया किसके ऊपर, अरे यार ये 9% नहीं बढ़ता है, फ्लोटिंग की करना चाहिए, उससे पैसा बचता है। एंड बी से अरे यार ये झंझट नहीं चाहिए मुझे हर बार इंटरेस्ट रेट चेंज की, मुझे क्या चाहिए, फिक्स चाहिए। अब ये गया, पहले बी गया उसके बैंक के पास कि मेरे को है ना M+1 बंद करके फिक्स पे आना है। उन्होंने कहा उसका रेट आएगा कितना, कितना बोला लोग ने, 11। अब ये गया उसके बैंक के पास कि मुझे फिक्स नहीं चाहिए, मुझे फ्लोटिंग दो, इसने बोला M+2 लगेगा, M+2। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि अगर ए बैंक के पास जा रहा है तो उसे कौन से रेट पे मिल रहा है लोन, M+2, और अगर बी जा रहा है तो उसे क्या रेट पे लग रहा है, फिक्स रेट 11। अब यहीं पे इफ आई टेल यू कि अगर ये ए को कैसे भी करके बी को ढूंढ पाए और बी का ये फ्लोटिंग वाला पार्ट जो अवेलेबल उसके ऑलरेडी है M+1 ले पाए, तो डेफिनेटली M+1 और M+2 का जो गैप है 1 का, वो बेनिफिट हो सकता है। डू यू एग्री? Yes. ऐसे ही ये बी बैंक में ना जाने से पहले ये ए को ढूंढ पाए, तो उसे जो 11 का कोट मिला है बैंक से, 11 का कोट, उस पर क्या रेट पड़ सकता है, 9. अब ये ढूंढने वाले का नाम हम यहाँ पे स्वैप बैंक करेंगे, एक इंटरमीडियरी जो ये काम को एग्जीक्यूट करेगा। अब हमें करना क्या है पता है, मैंने आपको सिर्फ सिचुएशन बताई है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द सिचुएशन वेयर द चैप्टर अराइजेस। इसके अंदर एग्जाम्पल के एग्जाम सम्स भी बहुत सारे हैं हमारे पास, तो आपको वो एग्जाम क्वेश्चंस वाला क्लैरिटी क्लियरली आ जाएगा। लेकिन ये सिचुएशन में हमें करना क्या है, हमें ये समझना है कि स्वैप डील होती कैसे है। That is the first conceptual background which we want. How does swap deal gets executed? Number 2, execute होने के लिए हमें उसकी viability चेक करनी पड़ेगी, क्या ये बेनिफिशियल है कि नहीं है, जैसे हमने यहाँ पे देखा वैसे। नंबर 3, उनका शेयरिंग कैसे होगा, how much will swap bank take the benefit, how much will A get and how much will B get the benefit. Now benefit कौन कितना लेगा, that is purely independent. Purely independent यानी मतलब as per the mutual agreement between the parties. इसमें कोई लॉ नहीं है, इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं है कि आपका बेनिफिट कौन, इट्स अ म्यूचुअल अग्रीमेंट फाइनली। और हमें इसका स्ट्रक्चर सेटअप करके इसके स्वैप नेट ऑफ स्वैप कॉस्ट क्या होंगे वो बताने हैं, और वो स्वैप के बेसिस पे उसका आउटफ्लो क्या होगा वो हमें दिखाना है। मतलब इन शॉर्ट ये पूरा स्ट्रक्चर स्वैप बैंक का जो है वो कैसे फुलफिल होता है ये हमें पहले समझना चाहिए। तो हम अभी क्या करेंगे, मैं एक स्टैंडर्ड एग्जांपल लूंगा और उस एग्जांपल के थ्रू मैं पूरा स्ट्रक्चर ऑफ स्वैप्स आपको समझाऊंगा, एंड दिस विल टेक एन आवर टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट दिस। हम लोग क्या करेंगे, स्वैप, देन आई विल जस्ट टेल यू समवन हु आर अटेंडिंग इट with others also, swap bank topic, interest rate cap, interest rate collars, वो topic, international capital budgeting topic, फिर आपका FRA topic। ये 4-5 topics जो है small topics of derivatives connected, ये 5 और theories के 3, that is your क्या बोलते हैं startup finance, that your securitization. This is what I am figuring it out first, फटाफट to that ये 6-7 चीजें हैं small, everything has a weightage of 1 to 1.5 lectures, 2 lectures, कोई है जो 3 lectures तक जाएगा। This is what I want to finish it first, and then I'll be moving with your portfolio and derivatives, ठीक है, because वो लोगों ने वो बैठा हुआ पार्ट है, तो ये रिवाइज भी हो जाएगा इजीली।
ओपन योर नोट्स और वहां पे आप लोग क्या करना, आप लोग कुछ मत, आप उसको अलग चैप्टर मानो। आई ऑलवेज फील हर एक को अलग चैप्टर मानो, वो बेटर रहता है। आप अभी का चैप्टर का हेडिंग जो है वो इंटरेस्ट रेट स्वैप्स है, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स। मैं वर्ड ओपन कर रहा हूँ। अभी तक मैं आपको कुछ ओवरव्यू में डाउट आया हो तो मुझे पूछ सकते हो, नहीं तो आप जब एग्जांपल देखोगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा एग्जांपल के बाद। एनीवन वांट्स स्टिल हैव समथिंग इन हिज माइंड व्हिच यू वांट्स टू आस्क नाउ? एनीवन? ये चीज इंडिया में बहुत कम होती है। पहला क्लैरिटी, आपको इंडियन मार्केट में ये सब चीजें नहीं मिलेगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, स्वैप करने का मतलब तो आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे व्हाट आर वी डूइंग विद स्वैप्स? So we can't see the word screen. सॉरी। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। इंटरेस्ट रेट स्वैप्स के अंदर हम लोग डायरेक्टली एक एग्जाम्पल से ही पूरे पार्ट को समझेंगे, क्योंकि स्वैप्स को बेस्ट समझने के लिए इट्स लाइक एन एग्जाम्पल इज रिक्वायर्ड फर्स्ट rather than the theories to it. It is not helping us further. तो यहाँ पे सीधा चालू करेंगे एग्जाम्पल से, और एग्जाम्पल के अंदर हम सब थियरी को कवर करने की कोशिश करेंगे। Only one example to this, that will be enough. Okay. आप लोग सुनते जाना और साथ में लिखते भी जाना। जहां पे भी आपको लगे आपने नहीं समझा, मुझे पूछते जाना। I'll explain it together also. J has borrowed from HSBC at fixed rate of 13% per annum. तो J ने बोरो किया HSBC से at the rate of 13% per annum fixed, but now desires to convert the borrowings into floating rate, where HSBC has agreed to offer MIBOR, Mumbai Interbank Borrowing Rate, 1.9%. You can say Mumbai Interbank Borrowing Rate or Mumbai Interbank Offer Rate to this. अब ये आपका पहला पैराग्राफ हुआ। जे लिमिटेड के पास एज ऑफ नाउ फिक्स्ड रेट है 13% पे, उसको करना था फ्लोटिंग। वो HSBC का वापस गया, उसको मांगा, उसने जो कोड दिया है वो है मिबोर प्लस 1.9%। ये उसका फ्लोटिंग रेट जो आपको HSBC ने कोड किया। आगे S has borrowed क्योंकि 24 hours था from Citibank at floating rate
of MIBOR plus 1.5%, but now desires अभी तक का पार्ट हमने क्वेश्चन की सिचुएशन को लिखा है. Sonal Sawant, can you hear me? Sonal, Priyanka, Yes, sir. Sonal, tell me what is the basis now, till now. So Jay has borrowed a loan that is a fixed loan, but Oh. then he wants it to be a floating rate loan. So Okay. where the bank has agreed to a different rate which is higher, and then now S has borrowed a floating loan but needs to convert it to a fixed loan. So that is the basis. Okay. तो कैन आई से फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन, पहले तो मुझे ये समझना होगा कि दोनों का रिक्वायरमेंट जो है और दोनों का सिचुएशन जो है वो ऑपोजिट होना चाहिए. डू यू अग्री? Yes. द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आपका दोनों को सेम सेम चाहिए होता तो क्या स्वैप होता? क्या नहीं होता. स्वैप तब होता जब आपके पास जो है वो अलग अलग है और आपको वो जो चाहिए वो भी ऑपोजिट है. दैट्स द थंब रूल टू स्वैप्स. ये आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए कि फिक्स को फ्लोटिंग चाहिए, फ्लोटिंग को फिक्स चाहिए. उसके पास फिक्स्ड है, उसके पास फ्लोटिंग है. ठीक है, आगे. They approached a swap bank for the swap deal. And if the deal is feasible to share the benefits in the ratio of 5:5:4. That is J, S and swap bank. तो इनका ये रेशो रहेगा गेन को शेयर करने का. You are required to determine how the swap deal can be effective. ये पहला क्वेश्चन है, धीरे धीरे आगे जाएंगे. पहला क्वेश्चन, ठीक है. मैं आपको एक मौका देता हूं, मैंने कुछ नहीं सिखाया है. इट्स लाइक अ रैंडम मौका टू यू ऑल कि ये स्वैप डील को एनकैश करने में क्या बेनिफिट दिख रहा है. दैट इज योर इफेक्टिवनेस ऑफ द डील. समवन कैन ट्राई दिस. क्या लगता है आपको कि यहाँ पे स्वैप डील को कैसे आइडेंटिफाई करें कि इसमें बेनिफिट है कि नहीं है?
मैं कराऊंगा, आप सिर्फ ट्राई करो। ओके, किसी को आंसर देना है कि मैं पहले बेसलाइन दूं? यहाँ पे ध्यान दो। आपको मैं और हिंट देता हूँ। आई जस्ट वांट कि आपसे हो विदाउट स्वैप। मैं पहले विथ रख लेता हूँ, विदाउट बाद में, ये विदाउट। अब मैं पूछता हूँ आपसे कि अगर हमने स्वैप नहीं किया तो हमारा एग्जिस्टिंग जो ऑब्लिगेशन है जे का और एस का, दोनों को मिला के हमारा टोटल आउटफ्लो कितना होगा? तो सर जे का एग्जिस्टिंग बोरोइंग है फिक्स्ड का 13%, तो आप यहाँ पे लिख लेता हूँ 30, और यहाँ पे एस के पास जो फ्लोटिंग है एग्जिस्टिंग, वो कौन से रेट पे है? m + 1.5, m + 1.5, that is MIBOR + 1.5. कैन आई से दैट दोनों को मिला के टोटल आप लो जे और एस का एग्जिस्टिंग में जो है वो कितना है? m + 14 + 5. m + 14.5%। लेकिन अगर स्वैप नहीं किया और हम डायरेक्टली बैंक को अप्रोच करते जे और एस, तो यहाँ पे जे ने जब बैंक को अप्रोच किया तो, और अगर जे ने बैंक के साथ ही स्वैप, विदाउट स्वैप बैंक के साथ ही इसने एक्सचेंज कर लिया होता और स्वैप डील विद एस नहीं किया होता, तो जे वुड हैव लेड टू व्हिच रेट गाइस? m + 1.4, डू यू एग्री? 1.9, सॉरी, डू यू एग्री? 1.9. एंड यहाँ पे एस वुड हैव एग्री टू व्हिच रेट? 14, डू यू एग्री विद दिस? Yes, sir. मैं यहाँ पे लिख दूंगा 14% प्लस m + 1.9%. This will have led to my overall outflow to both the people. That will be m + 15.9%. So without a swap is m + 15.9, and with swap is m + 14.5. So can you see that there is a positive difference to that for the swap deal? Do you agree? Yeah. Yes. The swap benefit in the above deal is 1.4% per annum. नाउ ये आपका पहला डील आया कि स्वैप डील अफेक्ट होगा या नहीं होगा? तो होगा, क्योंकि यहाँ पे गेन है, therefore swap deal can be affected. सबसे इंपॉर्टेंट पूरे स्वैप में यही है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछते हैं कि स्वैप डील अफेक्ट होगा या नहीं होगा।
तो यहाँ पे हमने सिर्फ क्या किया है, इसको रैंडमली रखा है इन अ लेमन लैंग्वेज कि अगर स्वैप होगा तो एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन ही रहेंगे, अगर स्वैप नहीं होगा तो विदाउट स्वैप नए ऑब्लिगेशन आ जाएंगे। डू यू एग्री? Yes, sir. तो एग्जिस्टिंग को न्यू से कंपेयर करो, विद स्वैप को विदाउट स्वैप से कंपेयर करो, और उसके टोटल आउटफ्लो को कंपेयर करके देखो क्या विद स्वैप हैज अ चीपर आंसर टू दिस। जितना स्वैप चीपर होगा तो उतना बेनिफिट ज्यादा होगा। एवरीवन, Yes. नंबर 2, क्वेश्चन 2 हियर। Determine the surplus to be shared by 3 parties. So we have the ratios available with us, J, S and swap bank. So J will be sharing how much? So it's like 1.5 total gain, 1.4 into, what is the ratio? 5:4, right? That is 14. That is 5/14 will be J ka gain. Number 2, 1.4 into again 5/14 is again S ka gain, and 1.4 into 4/14 is swap bank का gain. ये आ रहा है कितना? 0.5%. क्या तुम लोगों ने इतना लिखा है इसके अंदर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ग्रेट। तो आपको अभी तक तो समझ में आया होगा क्या हो रहा है यहाँ पे, राइट? Yes. तीसरा एलिमेंट पे जा रहा हूं मैं। मुझे ये बताओ, बिफोर आई मूव टू द थर्ड वन, एवरीवन हियर बी अलर्ट, ये गेन है तो व्हाट विल बी द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट टू जे एंड एस इफ द स्वैप इज डन? मतलब नेट ऑफ बेनिफिट कट करने के बाद नया इंटरेस्ट रेट उसको क्या पड़ेगा, जे को और एस को, बताओ। कम ऑन, दैट्स अ चैलेंजिंग क्वेश्चन अगेन। What should be the interest rate applicable to J and what should be the interest applicable to S? So J will get MIBOR plus 1.4. Very good, Pratham. And S will get, S will get 12.5. sorry, 12.5. देखो यहाँ पे क्या ऑफर किया गया था, एस, सॉरी एस को, एस की बात की ना अपन ने, हाँ, so 13.5. Yes. 13.5 प्रथम, बराबर। Yeah. Yes. नाउ जिनको ये सोचने का समय नहीं मिला अभी तक, अब वो ये समझा दूं कि what was the rate offered to J by the bank to go for MIBOR? Is this 1.9? Yes or no? Everyone. Yes. And Yeah. what was the rate offered to S if he went directly to get fixed from SCB Bank? कितना था? 14. अब ये 14 और 1.9 को हमने कंपेयर किया था M.1.5 और 13 के साथ। तो जे क्या सोचेगा कि मार्केट में मुझे HSBC 1.9 पे दे रहा था और मेरा यहाँ पे जो गेन आ रहा है वो है 0.5, तो मेरा नया रेट क्या होना चाहिए? M+1.4। एस क्या सोचेगा कि मार्केट में मैं डायरेक्टली सिटी बैंक से फिक्स लेता तो क्या रेट आता? 14, और मैंने जब मार्केट से 14 से नहीं लेना है मुझे और स्वैप करना है तो मुझे क्या पड़ेगा? 0.5 का गेन माइनस करूंगा, कितना पड़ेगा? 13.5। आर यू क्लियर विद दिस ओरली? Yes. इसको मैं प्रूव करता हूँ, इसे मैं प्रूव करता हूँ, सुनना ध्यान से। So in the sense, how would swap bank operate to this? The third part to the same is show how the swap deal can be arranged.
show how the swap deal can be arranged. That's your next question. तो यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ वो लिखना. मैं जे के पॉइंट ऑफ व्यू लिख रहा हूँ. The swap bank shall re-borrow. शांति से सोचना. Shall re-borrow from J his existing fixed interest loan at 13% per annum. That is J's existing obligation shall be taken over by swap bank and swap bank will charge from J at the agreed floating rate M plus 1.9 minus 0.5 plus 0. The swap bank is offering the rate quoted by HSBC less by 50 basis points due to swap gain. To conclude for will be benefited by 0.5% over swap arrangement. एक बार पढ़ लो ये वापस and just tell me, have you understood the part 1 that is from J's angle?
एक सेकेंड, मुझे आप टाइम दो ना, तो मुझे एक और चीज आपको यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ। कैन यू सी द व्हाइट स्क्रीन, व्हाइट बोर्ड? Yes, sir. स्वैप बैंक, यहाँ पे दो पार्टीज है हमारे, आप लोग अभी कुछ मत लिखना यहाँ पे, जे और एस। हम लोग अभी जे के एंगल को देख रहे हैं। मुझे बताओ यहाँ पे स्वैप बैंक जे को कौन सा इंटरेस्ट रेट देगा? M plus 1.4. ठीक, यहाँ पे थोड़ा टर्मिनोलॉजी में प्रॉब्लम होगा। एक है जो जे स्वैप बैंक को अभी से इंटरेस्ट पे करेगा, दूसरा ये है कि जो स्वैप बैंक जे को पे करेगा। Okay. कौन सा लोन टेक ओवर किया स्वैप बैंक ने? जे से 13% वाला. 13 वाला। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो द आउटफ्लो टू जे स्वैप बैंक विल बी 13%, डू यू एग्री? Yes. And the inflow to swap bank will be how much? M plus 1.4. यहाँ पे आएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ m plus 1.4। यहाँ आप ध्यान रखना कि स्वैप बैंक को आया कितना जे से, m plus 1.4। स्वैप बैंक कितना दे रहा है जे को? 13। तो फाइनली जे को क्या पड़ रहा है फाइनली अभी से? इसने ये दे दिया, मतलब जे का जो लोन खड़ा है ना, और एग्जिस्टिंग जो लोन खड़ा है ना एचएसबीसी के पास, देखो यहाँ पे मैं और नीचे लेके जाऊँ, जे का एग्जिस्टिंग लोन कौन सा है बताओ? 13% from HSBC. 13% एचएसबीसी। ये जो स्वैप बैंक से 13% आएगा वो किसको जाएगा? डायरेक्टली HSBC. डायरेक्टली खत्म। यहाँ इसने बोला कि तेरा ये लोन मेरा, तो यहाँ से ये स्वैप बैंक 13% देगा और इट विल डायरेक्टली गो टू एचएसबीसी, तो इसका लोन एक्टिव रहेगा। Yeah. ये जे कितना देगा बैंक को, स्वैप बैंक को? m plus 1.4 एवरी ईयर। आर यू क्लियर विद दिस फ्लो? Yes. ठीक है, अब ये फ्लो ऐसा कैसा रखो, फिर हम लोग इसका डिस्कस करेंगे, किसका? एस का, एंड देन विल सी हाउ द स्ट्रक्चर इज बेसिकली बीन मेड टोटली। ये आपका एलिमेंट नंबर 1 खत्म हुआ, बी पे जाते हैं। स्वैप बैंक, So we can't see the word screen. okay, now you can see it. Swap bank will re-borrow from S at m plus 1.5 that is the floating loan burden of S is taken over by Swap bank and in turn Swap bank to S fixed rate loan at the interest rate of यहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट जो आएगा वो कितना आएगा? 14% minus 0.5. डू यू अग्री?
minus 0.5. That is 13.5% per annum. Guys, ये पढ़ो एक बार, फिर मैं वो चार्ट पे जाता हूँ. सर इसमें जो रेशियो है 5:5:4 वाला, how is that derived? Sorry. So That is mutual agreement at the time of entering into contract. no, मतलब sir, I am asking only because the entire crux of who's getting how much benefit Now is I'll tell you. that No, ratio, right? I got your question. Now listen, Pratham. See, first of all, कि जिसको जितना बेनिफिट मिल रहा है ना प्रथम, Yeah. और जिसकी वजह से मिल रहा है ना प्रथम, that will be the core determining factor to determine the ratio in a real market. Okay. जैसे कि अगर प्रथम का ब्रांड बहुत बड़ा ब्रांड है, गुडविल बहुत बड़ा है प्रथम का, इन टर्म्स ऑफ लोन रिपेमेंट्स लास्ट 25 ईयर से एक भी लोन रिपेमेंट डिफॉल्ट नहीं हुआ है, ठीक है. Correct. And I am a new startup, which you are basically someone who knows me well, but I'm a new startup. Okay. If I go to take a loan from a bank, I get a higher interest rate. Correct. But the loans which you have directly is at a lower rate. Correct. Now, in this kind of situation, if the swapping has been done because of the goodwill differentials, which has been there offered by bank because of risk criteria, right? Correct. In this cases, the ratio will be determined whereby the benefit of this ratio will be more on your side. Okay. Got it. Less of my side. Got it. Similarly, in every situation, Pratham, the deal will be workable if everyone is justifying the ratio with respect to his involvement to it. Got it. So, और ये arrangement will be mutually between the parties. Correct. So, मैं sir, क्या लेके आ रहा हूँ, मैं क्या देख लूँगा, that's it. So, depending on the default risk of the parties, we'll decide कि कितना benefit देना चाहिए. So, if One you of the criteria, Pratham, one of the criteria. yeah, got Yeah, it. one of the. Second will be कि अगर suppose मेरे पास एक old loan पड़ा है at a very good rate, मतलब मेरा interest rate low था, suddenly market change हो गया है ना प्रथम अभी. Correct. COVID, the interest rate has high in borrowings now. Correct. If I already have a product at a lower rate, I will try to get but I want to change it to from fixed to floating, suppose. I can outsmart the parties के देख भाई market में rate 15% है. Correct. Already 10-year loan available at 12. Correct. Deal लेता है क्या अच्छा मेरे को 3 में से 2% मेरा 1% देगा. So we don't know what is the reason, but कभी कभी किसी का अच्छा सा product already available होता है and he wants to maximize it because the market sentiments are changing now. So every time the sentiment changes and what a product what you have and सामने वाले का गरज कितना होगा to get that product from you and a benefit. Market में rate क्या चल रहा है? These are the factors which will rotate and try to identify के finally swap benefit कैसा कौन share करेगा. Thankfully, देखो this is the difference between practical and what we do. अब अभी इस case में what you are learning finally is how do you work it, right? But never you will find the ratios in you don't have to determine the ratios in any sums. Correct. So that is impossible to do it theoretically. That will be something when you discuss with your client and try to pinch it out कि तेरे लिए best क्या है. That's how it is. तो वो तुम लोग को for that you have to enter into this deal practically. उसके पहले possible नहीं हो. ठीक है? Got it. आप लोगों ने ये पढ़ा क्या सब लोगों ने सेकंड पार्ट? Yes. अब यहाँ पे S का मूवमेंट्स देखते हैं. यहाँ पे कैसे होगा? How much is S going to pay to swap bank? At which rate? 13.5. 13.5. And how much is bank going to pay by taking over its floating loan? And plus 1.5. एक सेकेंड ना, मैं इसको रोटेट करने की कोशिश करता हूँ. M प्लस कितना था 1. सॉरी यहाँ पे कितना था इसका M प्लस 1.5. Yeah. ठीक है, तो आप इसको ऐसा लिखोगे कवरिंग लैंग्वेज में. अब M प्लस 1.5 is what swap bank pays, right?
Yes. Yes. And 13.5 is what swap bank receives. Do you agree with this? Yes. अब यहाँ पे लास्ट एलिमेंट बचता है इस पूरे लेग का. यहाँ पे कौन सी बैंक है? सिटी बैंक. How much is he paying to Citibank? But naturally, M plus 1 point. तो यहाँ पे जो पैसा आया स्वैप बैंक का एस को 1.5, वो कहाँ जाएगा? डायरेक्टली सिटी बैंक को. डू यू अग्री? हेलो. Yes. और यहाँ पे जो आया वो गया HSBC को. अब मुझे ये बताओ इस अरेंजमेंट के अंदर यहाँ पे देखना, स्वैप बैंक ने जो इससे 13.5 लिया, उसमें से स्वैप बैंक ने जे को कितना दिया? 13 दिया ना, बराबर. और 13 यहाँ पे पे हुआ. डू यू अग्री विद दिस? Yes. तो यहाँ से 13.5 आया, ठीक और लिया, इसीलिए वो यहाँ पे गया. वैसे ही यहाँ से जैसे M.1 M plus 1.4 आया और यहाँ पे कितना गया? M plus 1.5 गया और वो M plus 1.5 जाके इट डायरेक्टली गोइंग टुवर्ड्स सिटी बैंक. अब आप यहाँ पे ये देखो कि स्वैप बैंक को कितना मिला. तो मैं यहाँ पे है ना इनफ्लो और आउटफ्लो लिख देता हूँ स्वैप बैंक का. अब इनफ्लो टू स्वैप बैंक क्या है पता है? जे का M plus 1.4 और एस का 13.5. डू यू अग्री? Yes. अगेन कितना टोटल आ रहा है? ये आया तेरा 14.9, राइट? M plus 14.9. और आउटफ्लो की बात करूं तो स्वैप बैंक जे को 13% दे रहा है और स्वैप बैंक एस को M plus 1.5% दे रहा है. और कितना हो रहा है? M plus 14.5. डू यू अग्री? Yes, sir. अब इस दोनों का गैप कितना है? 0.4, right? Yes. That is the gain to swap bank under our differential gains. Check it out in your part 2. Yes. देखो यहाँ पे अपना गेन जो था ना स्वैप बैंक को, ये आया आपका 0.4. ये 0.4 कैसे आया? दिस इज द चार्ट टू गेट दैट थिंग्स क्लियर. 0.4 क्लियर ही है? Yes. Yes, sir. क्या आपने चार्ट बनाया? Yes. Everyone has made this. अब ये बना लो. Yes. And this is where we finish off the background to swap arrangements. How does swap arrangement happens? एक चीज जो आपको एक और बार रिपीट करना चाहूंगा वो ये है कि स्वैप डील में आपको ये समझना है कि ये जो जे और एस है उनको कौन सा रेट बेनिफिशियल हुआ. उसके लिए आपको ये देखना है कि उसको कौन सा कोड अवेलेबल था फ्रॉम द बैंक, नया कोड. कंपेयर दैट विद दिस कोड. तो ये M plus 1.4 is the quote is what he is paying, and M plus 1.9 was quoted by HSBC. So here a gain of 0.4. Similarly, S was quoted from Citibank 14%, and यहाँ पे he is basically paying at 13.5. So he is getting a benefit of 0.5. So try to understand it कि जो कोड अवेलेबल है उसके रिलेशन में आप चेक करोगे. Anyone has a doubt? You tell me. We have finished it. So the sums part we are going to do next class. Anyone has a doubt here can ask me, or we'll close the session. Clear सब लोग?
Yes. Wrinkle. Yes, sir. Done. Done. Yes, sir. See you next class. Yes. Take care. So Thank you, sir. can you share Number, yesterday's Thank you, recording? sir. I'll show you. So can you share yesterday's recording? Mahika, Yes, sir. મારે છે ને મને યાદ જ નથી મેં રેકોર્ડ કર્યું છે કે નહીં, but you So just you complete the recorded. notes. I might have done it. I'm not sure. I'll just recheck it. I'll send you by 11:30 or 12. ठीक છે? Thank you, sir.